बच्चे नौजवान खो दिए पहलगाम में। इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है, और उसके साथ कश्मीरी या मैं जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। ये ऑल पार्टी मीटिंग थी, इसमें सबका एक ही स्टैंड था। वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, और रेजोल्यूशन जो यूनैनिमसली पास किया, तो उसमें जो ये दुखद जो ये कल कार्नेज हुआ है उसके बारे में बात हुई, और हम सब जो है इकट्ठे हैं इस यह मुसीबत की। हमने उनसे कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी टेकअप किया जाए, और मुख्तलिफ रियासतें जहां पे हमारे लोग हैं उन रियासतों के साथ भी बातचीत की जाए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो सिटीजन्स वहां पे इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने रेकमेंड किया। अभी उसके बारे में कहना मुश्किल है, वो अभी बाहर निकल के हमें इस बारे में मालूमात हासिल करनी है। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया है। जी पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दी, उन्होंने भी रद्द अमल दिया है। देखिए, ये तो अब एक्शन और काउंटर एक्शन वाली बात है, लेकिन हमारी गुजारिश दोनों सरकारों से यही होगी कि थोड़ा सा इस वक्त दे मस्ट कीप देयर कूल। अभी ये जो ये सान्या हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इसकी नौयत बहुत बड़ी है। हम इसको गिनती से नहीं गिन सकते। इसका जो आफ्टर मैथ है वो बहुत बड़ा हो सकता है, बट हम बहैसियत कश्मीरी, हम बहैसियत बाशिंदे जम्मू कश्मीर के यही कहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब कभी भी कज्जिया होता है, जब कभी भी कोई झगड़ा होता है, उसके डायरेक्ट कैजुअलिटीज यहाँ के लोग होते हैं। सो एज विक्टिम्स एज वी हैव बीन एवर, we will request both the governments to keep their cool. First instance, I conveyed the message of Rahul Gandhi, who had talked to me from US, that we should not politicize this event. We should not settle our political scores. Though there are many questions, there are questions within questions as far as the security lapse is concerned. But his clear-cut direction was that this occasion should not be politicized. Then we had put certain suggestions to them. From Congress party, I put some suggestions to them that let there be an all-party delegation from Jammu and Kashmir who could visit the houses of those people who have died, who were killed. And we put that this suggestion to be named as kind of ambassadors of peace. The another suggestion I put before the forum was that there should be a special assembly session called. So I think they had already decided about it. I had asked for the 3-day session, but maybe there would be a 1-day session. And I have suggested that there should be a memorial in the name of the deceased people, the killed people in Pahalgam. And I think that too has been accepted in principle. Then I suggested that there should be, as the highest level of the civilian award for bravery, that should be given to posthumously to Shaheed Sayyid Abid Hussain. So that also has been agreed to. Moreover, I suggested, which was suggested by others also, that the safety and security of the students of Jammu and Kashmir and the citizens who are all across the country should be taken care of, and the union government should be talked about it, and the respective states where these people are, they should also be told that they should ensure the safety and security of our people. All political parties on the same page. See, I don't think we should put it bracketed in tourism. It is much beyond tourism. We have seen tourism getting affected, but we have then seen the revival of the tourism also. This is a bigger tragedy than tourism. I don't think that we should focus on the tourism. We should focus on the humanity. We should focus on the integrity of the country.
and we should focus on the safety and security of our people. And we should see to it all in one. By having our collective wisdom, we should see that such things don't happen again and again. Sorry? Sorry, I couldn't. The militants doing the infiltration from the line of control. How you are looking at the security? See, that is the security angle. That is for the army to see. That is for the union government to see. I don't think it is proper. It would be appropriate for me to comment on the security scenario at this moment. There might be questions within questions, but at the moment we would not like to politicize the issue. अंदर बात हो रही है रेजोल्यूशन पे, यहाँ पे बात हुई जो कल हादसा हुआ था, जहाँ पे मैं मेहमान नहीं कहूँगा, हमारे मुल्क के शहरी, उनकी जान जो है वो एक हादसे में ली गई, एक दहशतगर्दाना हादसे में ली गई। तो उसके खिलाफ जो पूरी रियासत का रिजॉल्व है वो अंदर जाहिर किया गया, उस पर बात की गई, और उसके रिस्पॉन्स में जम्मू कश्मीर की क्या जिम्मेदारियां बनती है, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां बनती है, उस पर बात हुई। और जो माहौल बना हुआ है इस वक्त डर का, जो इस हादसे को ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से बात हुई। और जो कश्मीर के लोग बाहर दूसरी रियासतों में इस वक्त है, जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कैसे दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ बात करनी है और दूसरी रियासतों की गवर्नमेंट्स के साथ बात करनी है, और ये इंश्योर करना है कि इस रियासत के बाशिंदे जो है उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। तो यही सब कुछ है जो डिटेल में अंदर बात हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस वक्त एक ये कि जो अपना रेस्पॉन्स है वो उनका अपना सब्जेक्ट है। जम्मू कश्मीर के लोग जो इस वक्त रियासत के मुल्क के दूसरी रियासतों में हैं, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, वो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस हुई। मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। शायद हाँ, असेंबली सेशन एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है जिसमें इस पे बात होगी। सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंसे हैं, गुहार कर रहे हैं कि हमें जो है कहीं न कहीं रेस्क्यू किया जाए। कई सारी जगहों पर जो ऐसी चीज़ें दिखी हैं जो कहीं न कहीं दिल दहला देने वाली। वही बात हमने भी यहाँ पे की, चीफ मिनिस्टर को भी कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी ऑफिसर्स आप मुख्तलिफ रियासतों में भेज सकते हैं वो भेजें, ताकि वो उनके अगर कोई वापस आना चाहता है उनके रिटर्न को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ फैसिलिटेट करे, और जो वहाँ पे रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट्स के साथ बात करें, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करें। और हेल्पलाइंस वगैरह जो खोली गई है उनमें और ज़्यादा इजाफा करने की ज़रूरत है। लॉजिस्टिक सपोर्ट उसके अलावा जो देने की ज़रूरत है उन स्टूडेंट्स को, वो इंश्योर करने की यहाँ पे बात की गई। सर, कोई एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसमें खाली कश्मीरी को टारगेट किया जा रहा है और कहीं न कहीं मजहब को लेकर बातचीत हो रही है, और कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे जो इस तरीके से दिखा रहे हैं, जिसको देखकर कई सारे ऐसे अफराद जो है वो परेशान हैं, ड्राइवर हजरात परेशान हैं। बदकिस्मती ये है कि वो दहशतगर्द आए, उनने गोलियां चलाई, उनने गोलियों से इंसानियत का कत्ल किया, और ये जो अब ये मीडिया कर रही है, ये अपने मीडिया के गलत इस्तेमाल से इंसानियत का दूसरा कत्ल करना चाहते हैं। ये इस हादसे को अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम में तब्दील करना चाहते हैं। ये इनके दांतों में वो खून का चस्का लगा हुआ है, ये प्यासे है खून के लिए। ये उन्हीं दहशतगर्दों की तरह प्यासे है जिन्होंने बंदूकों से गोलियां चलाई और खून बहाया। ये प्रोपेगेंडा से, कम्युनल दंगों से खून बहाना चाहते हैं। तो इस मुल्क को देखना पड़ेगा, ज़ीशूर जो लोग हैं यहाँ इस मुल्क में, जो सोच रखने वाले लोग हैं, उनको देखना पड़ेगा। न सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हर तबके के लोग यहाँ पे इसी तरह से कुर्बान हुए हैं कश्मीर में, इसी दहशतगर्दी के शिकार हुए हैं। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, हर कोई इस दहशतगर्दी के शिकार हुए, और हर तबके ने इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा है पिछले 30-35 सालों से, आज भी। और कल के इस हादसे में भी जब वापस लड़ने की बात आई, फोर्सेस बाद में पहुंचे, जब कश्मीरी सैयद आदिल ने जो शहीद हुआ, उसने पहले लड़ा और अपनी जान कुर्बान की। और वही हकीकत है, जो हकीकत कोई बताएगा नहीं, बल्कि इस हादसे को अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करेंगे। बस आपके जरिए से यही गुजारिश होगी ज़ीशूर लोगों से मुल्क के, कि वो हकीकत को समझे और
उन दहशतगर्दों से भी दूर रहे और इन दहशतगर्दों की साजिशों से भी दूर रहे जो मीडिया पे बैठ के अब दहशत चला। बिल्कुल एक अहम मीटिंग थी और आपने देखा होगा कि एक रेजोल्यूशन हमने जॉइंटली अक्रॉस द पार्टी लाइन्स हमने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें न सिर्फ हमने मजम्मत की बल्कि आगे का जो लाहे अमल रहेगा कि कैसे ठोस इकदाम उठाने की ज़रूरत है, चाहे जो यहाँ टूरिस्ट आएंगे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं दूसरी स्टेट्स में या जो कारोबार के सिलसिले में बाहर जाते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से, या चाहे नेशनल लेवल पे कुछ मीडिया पोर्टल्स या जो कुछ जर्नलिस्ट जो फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे आतंकवादियों और दहशतगर्दों को जो है जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिलसिले में हमने अपनी पार्टी की तरफ से भी सजेशन रखी जिनको एडमिट किया गया, जिनको एक्सेप्ट किया गया। और बिल्कुल देखिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है, उन्होंने जो है अपनी तरफ से वो स्टेप्स उठाए, वो हाँ एग्जैक्टली, या वीज़ा पॉलिसी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, उन्होंने स्टेप्स उठाए, उनको जो बेस्ट लगा कि हमें क्या करना चाहिए इस वक्त उन्होंने उठाए वो स्टेप्स उठाए। लेकिन हमारे अंदर क्या है, हमारी हादी इख्तियार में क्या है, हम उन चीज़ों पे बात करेंगे और हमने वो सजेशन आके देख रहे काश हम पहले से इस तरह होते। सही आपने कहा, लेकिन इस बदनसीब मौके पर एक साथ होना भी हमारे लिए बड़ी बात है और आज एक साथ जमा होने का माने यही है कि हम अपने इस तजर्बे से सीख रहे हैं और इस सानहे के वक्त जिसमें कई लोग मारे गए मासूम लोग, आज हमने पैगाम दिया, अपने आवाम का सराहना किया कि वो सड़कों पर आए, एहतजाज किया और लाजमी तौर पर इसके अलावा जो मुल्क में ये खबरें आ रही है कि हमारे तालिब इल्मों को हरासान किया जा रहा है, मजदूरों को, ताजरों को, हमने एक साथ मिलकर मुतालबा किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हर सरकार से हमने मुतालबा किया है कि कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो और कश्मीरी बच्चों को, कश्मीरी जो भी ताजिर है, मज़दूर हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ होना ज़रूरी है और इनकी बहिफाजत घर वापसी को यकीनी बनाया जाए। ये हम बहरहाल ये चीज़ें अभी ज़ाहिर बहस आई नहीं यहाँ, लेकिन हमारा मुतालबा यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक रिज़ालू का वो मुज़ाहिरा किया कि हम एक साथ मिलकर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, कश्मीरियों की बात को सुना जाए। देखिए आज बहुत ही अच्छी बात ये हुई थी कि बीजेपी वगैरह भी वहीं सामने थी और एक सजेशन मेरी तरफ से भी गई कि आप जो आपका यहाँ लोकल यूनिट जो है उसको अपने सेंट्रल यूनिट से ये बात करनी चाहिए कि आपको इमीडिएटली कदगन लगानी चाहिए उन सब न्यूज़ के लोगों पर, उन सब पोर्टल्स पर जो हिंदू मुस्लिम फसादात फैलाने के चक्कर में हैं। आपको खड़ा होना चाहिए यहाँ से, यू आर रिस्पॉन्सिबल, हमारी तरफ से आप यहाँ पे बीजेपी का फेस हैं, आपको बताना चाहिए। और जो खुसूसन जो अटैक्स इस वक्त बाहर के बच्चों पे हो रहे हैं या हमारी किसी भी कश्मीरी स्टूडेंट्स वगैरह पे हो रहे हैं, आप लोगों को वो बंद करवाना आपका फ़र्ज़ बनता है। सियासत इसमें भी की जा रही है, हालांकि यहाँ से दो मुल्कों में थोड़ा सा रशीकशी तेज़ हो गई है, इंडस वाटर ट्रीटी पर भी जो सस्पेंशन हुआ है कुछ खदशात दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल खदशात हैं। सो इंडस वाटर ट्रीटी पे ये बात भी गई थी कि इंडस वाटर ट्रीटी पहले से ही जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। सो ये एक बड़ा ही एक सीरियस इशू है और जब आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात शुरू की है तो इस पर यहाँ पर उसको कहा गया कि इसको यहाँ पर भी इसका एक सपोर्ट किया जाएगा। हैं जो इस अमन को नहीं देखना चाहते, या तो मैंने कहा जो जिम्मेदार हैं उन लोगों को समझना, अगर नहीं समझ रहे तो इस सरकार को समझाना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे जो ओपन थ्रेट्स आज मिल रहे हैं, ओपन थ्रेट्स जो मिल रहे हैं, देखिए वो कहीं ना कहीं गलत है। उन लोगों को मैंने जवाब दे दिया है, मैंने आपको बता दिया कि वो मुसलमान नहीं है जो इस किस्म का माहौल, उन लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए। समझाने वाला कौन है? मीडिया उठा के जिसका नाम पूछकर जो है ये हिंदू है मार दिया। अरे वहां तो एक लड़का मुस्लिम भी था जिसने बंदूक को पकड़कर उसकी बंदूक से हटाने का काम किया, वो नहीं दिखा। देखिए बहुत कम लोग हैं ये, जैसे ये 4 लोग थे वैसे ही ये भी कुछ लोग हैं। अब देश के अंदर गंदा माहौल कर रहे हैं, जो उनकी मंशा है। पाकिस्तान चाहता है कि हमारे देश के अंदर देखिए ऐसे रंगतें आपको देखने को मिलेंगी। बस आप लोगों का काम है, कुछ लोग जो है यहाँ पर आप पोर्टल की तरफ पे चला रहे हो और कुछ नेशनल लेवल पर चला रहे हैं। जो आग उगलते हैं उन्होंने गोलियां बरसाई और वो जुबान से आग उगलते हैं और यहाँ सड़कों पर ऐसे हालात होंगे चाहे वो नहीं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चलिए मैं कह रहा हूँ इस सानिया पे जैसे आपने खुद कहा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है, क्योंकि ये कश्मीरियत का मामला है। और ऐसा सानिया यहाँ कभी भी नहीं हुआ है कि हम अपने ही मेहमानों को
जिस मेहमान नवाजी के लिए हम मशहूर है उसी पे दबा लग जाए, उसी पे बदनुमा दाग लग जाए। तो इस ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद ये था कि हम एक ही आवाज़ में, जो भी हमारी पॉलिटिक्स हो, जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन हो, मगर कम से कम इस इंसानियत के मामले पे एक होके पूरे देश और पूरी दुनिया को बता दें। इस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे रैली में या हमारे रिलेशंस नेबरिंग कंट्री के साथ, जहां उन्होंने दोनों मुल्कों में अब रस्साकशी इतनी चल रही है कि सस्पेंशन ऑफ इंटर वाटर ट्रीटी भी हुआ है, वाघा बॉर्डर्स को टाइट किया जा रहा है, वहां से भी खलिश नहीं। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट तो है, मगर ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इस वक्त एंगर है, एंग्विश है। इस वक्त लोगों के एंगर और एंग्विश को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्ड करना है, तो हो सकता है उनको कुछ ऐसे इकदाम लेने पड़े। मगर आपने देखा होगा दोनों कंट्रीज की रिलेशनशिप अनफॉर्चुनेटली ये अप्स एंड डाउन्स होते रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि फाइनली जब थिंग्स सेटल डाउन हो जाएंगे, मामला सॉर्ट आउट पीसफुली होंगे। एक तरफ से हमारे मेहमानों की शहादत हुई है, वहाँ दूसरी तरफ से आज भी कश्मीरी एक से दूसरे कंधे से कंधा लगाकर जो यूनाइटली स्ट्राइक हुए और हमारे इसमें कश्मीरी नौजवान ने भी जान खोई है बाकियों को बचाया। बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा शहीद आदिल जो है जिसने जान दी पोनी वाला, उसको शहादत का दर्जा मार्टर्ड करके हमने कहा कि उसके नाम पे एक अवार्ड दिया जाए। तो इसीलिए उसको हम एक्नॉलेज किया, हमने रिकग्नाइज किया, ताकि एक मिसाल रहे। जिस तरह से नेशनल मीडिया के कुछ लोग हमें पोअर लाइट में पेश करते हैं, उनको भी पता चले कि जम्मू कश्मीर में इस इंसिडेंट पे सारे एक हो गए और सारियों ने इंसानियत का दर्ज दिया। थैंक यू सो मच। क्या कुछ नतीजा निकल के आया? देखिए, एक अच्छी मैसेज दी गई है यहाँ से, और जिन लोगों के साथ ये सानिया पेश आया, मुझे लगता है उनके लवाकीन के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए एक मैसेज गया है कि हम जम्मू कश्मीर के लोग इसके खिलाफ हैं, जो भी अमन के दुश्मन हैं हम उनके खिलाफ हैं। सर, क्या कुछ आगे किया जाएगा इसको लेकर? असेंबली सेशन बुलाया जाएगा? वो तो अब सरकार का, वो तो सरकार तो आप कितना बड़ा लॉस मानते हैं आप खासकर टूरिज्म को लेकर? नहीं, हमारे लिए तो इंसानी जानों का लॉस बहुत बड़ा है। टूरिज्म तो चलता ही रहेगा। देखिए, आज की मीटिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट थी, और सभी ने ये वन वॉइस में दे डिसाइडेड कि पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो टेरर के अगेंस्ट खड़ा होगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि टेररिज्म का खात्मा हो यहाँ।